Hello students, this is our lecture number 2. Today we will discuss chemical property. Previously we discussed about general characteristics and their physical and atomic properties. Today we will discuss chemical properties. First point, oxidation state. Oxidation state is two types. Negative oxidation state and positive oxidation state. First we will see negative oxidation state. Oxygen, the first element, oxygen. Oxygen shows most of the cases, but generally in metallic oxide shows close to oxidation state, and oxygen shows -1 oxidation state in peroxide. That is our H2O2, and -1/2 oxidation state shows in KO2, that is superoxide. And in elemental state, that is O2 and O3, dioxide and trioxide, shows oxidation state 0. This shows 0 oxidation state. Except all the negative oxidation state, oxygen also shows positive oxidation state. That is, in OF2 shows +2 oxidation state. O2F2 shows +1 oxidation state. From oxygen to polonium, the tendency to show -2 oxidation state decreases. In case of polonium, it does not show minus oxidation state. It only shows positive oxidation state. Polonium shows only positive oxidation state. It never shows negative oxidation state because it is a metal, radioactive metal. Next, positive oxidation state. The general electronic configuration of this group NH2NP4, that means they have 6 electrons in its outermost shell. So they can accommodate +2 oxidation state, +4 oxidation state, +6 oxidation state. So oxygen generally shows -2 oxidation state, or mostly negative oxidation state. But oxygen shows +1 oxidation state in O2F2 and +2 oxidation state in O2F2. In the other case, the other elements, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, shows +4 oxidation state and +6. +4 and +6 oxidation states are common oxidation state for the remaining elements of the group 16 elements. The tendency to show +4 oxidation state increases when you move from top to bottom, that is top to bottom, and +6 oxidation state decreases as you move from top to bottom in the group, because +6 oxidation states not showing by everyone, because in case of polonium there is inner pair effect. Due to inner pair effect, the NH2 electrons, these electrons are not active, so the tendency to show +6 oxidation state decreases as you move from top to bottom in the group due to inner pair effect. But everyone can show +4 oxidation state, so the tendency to show +4 oxidation state increases as you move from top to bottom in the group. Anomalous property of oxygen. Anomalous means unique properties of oxygen. Oxygen काहेकि तार group element थारो ये unique.
due to its small atomic size and high electronegative value and non-availability of d orbital by absence of d orbitals. Due to these regions, oxygen shows anomalous properties. Due to this anomalous property, oxygen acts as gas, whereas other elements of the group exist as solid. केतेबेले ऑक्सीजन गैस आउ बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट रहिले ग्रुप 16 रा से माने सॉलिड केतेबेले ऑक्सीजन डाईएटॉमिक तो ऑक्सीजन डाईएटॉमिक हेला बेले बाकी सब ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड थिले S8 Se8 and Pe8 एंड जेतबेले ऑक्सीजन डाईएटॉमिक गैस हेला बाकी माने कोन हेले ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड हेले काहे कि ना ड्यू टू द anomalous properties of oxygen they shows gaseous state and diatomic properties. Oxygen is paramagnetic whereas other elements of group 16 are diamagnetic. Dioxygen, that is our O2 oxygen molecule. Preparation of dioxygen. We can prepare the dioxygen by heating our oxygen rich compounds. Some oxygen rich compounds are given below. KMnO4, potassium permanganate, potassium chlorate and potassium nitrate. When we heat potassium permanganate, it gives potassium manganate and manganese dioxide and gives our dioxygen. This is our dioxygen. Laboratory method of preparation of dioxygen. When we heat potassium chlorate and manganese dioxide in 4:1 ratio at 420 Kelvin temperature, it gives potassium chloride and our dioxygen as a product. We can prepare dioxygen from hydrogen peroxide. When we heat H2O2, it gives water and oxygen. We balance. This is our dioxygen. We can also prepare dioxygen from the hydrogen peroxide. Now we will see physical properties of dioxygen. Physical properties of dioxygen. Dioxygen is a colorless, odorless gas. It is a colorless and odorless gas. It is slightly soluble in water. It is slightly soluble in water. Third, it is paramagnetic. It shows paramagnetic character. देखो एटा पैरामैग्नेटिक काहे कि एथिरे अनपेड इलेक्ट्रॉन नथिले मध्य एटा पैरामैग्नेटिक हम एक्सपेरिमेंटल देखि देले आ तो यार पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करथिला chemical properties of dioxygen.
First, it reacts with metals. Except noble metals like gold and platinum, dioxin directly react with metals, give their respective oxides. किछ एग्जांपल देखिबा सोडियम देखिबा सोडियम प्लस ऑक्सीजन यदि हम रूम टेम्परेचर नवा तो ये हमको सोडियम ऑक्साइड दबो सोडियम ऑक्साइड दे देबो केते बड़ा हम कौन करिबा सोडियम को 575 केल्विन टेम्परेचर रे कौन करिबा रिएक्ट करिबा ते हमको दबो N2O2 सोडियम पेरोक्साइड दबो सोडियम पेरोक्साइड दे देबो जदि हम कौन करिबा मैग्नीशियम सहित रिएक्ट करेबा मैग्नीशियम सहित रिएक्ट करेबा यदि डाइऑक्सीजन को कोन हम देखो मैग्नीशियम प्लस O2 gives MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देबो सेम एबे हम कौन करिबा नॉन मेटल सहित रिएक्ट करेबा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस dioxide combines with many non-metals to form their corresponding oxide तो फर्स्ट देखिबा हम गोटे एग्जांपल जते बळे डाइऑक्सिन हाइड्रोजन से रिएक्ट करिवो एट 1073 केल्विन and passing through electric discharge it gives water next example देखिबा when nitrogen react with oxygen it gives nitric oxide when sulfur react with oxygen it gives sulfur dioxide next देखिबा which example when carbon react when carbon heated with oxygen less oxygen or limited कहि परिबा when carbon heated with limited amount of oxygen it gives carbon monoxide when carbon react with excess amount of oxygen it gives carbon dioxide जेतेबेले कार्बन को जळेबा लिमिटेड ऑक्सीजन रे कार्बन मोनोऑक्साइड दबा एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन when react with carbon it gives carbon dioxide ऑक्सीजन कंपाउंड मान सहित केमति रिएक्ट करूचे when oxygen react with sulfur dioxide at 720 kelvin and 2 atmospheric pressure in presence of catalyst platinum or vanadium pentoxide कोडाली कोड दे चलेबो then it gives sulfur trioxide बैलेंस कर दो हाफ टू मल्टीप्लाई कर बैलेंस हे गेला पड़े तो ये देखिबा सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करूची तो एमोनिया सहित केमति रिएक्ट करूची when dioxide react with ammonia it gives nitric oxide and water बैलेंस कर दो तो बैलेंस कर देगे डिफॉर मल्टीप्लाई करिबा डिफॉर मल्टीप्लाई करिया नाइट्रोजन चेड नाइट्रोजन एंड तो 12 हाइड्रोजन हेला तो ऑक्सीजन 10 टा 35 मल्टीप्लाई करतो तो बैलेंस हे गेला तेला हला नाइट्रोजन से रिएक्ट करले नाइट्रिक ऑक्साइड मिलुचे आ वाटर बाहरची नेक्स्ट कोन करिबा नेक्स्ट हम रिएक्ट करेबा HCl सहित when dioxin react with HCl it gives water and chlorine gas balance कर दबा दुटा chlorine gas दुटा chlorine हो गला then ये हाफ मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस हो गला a reaction with hydrocarbons reaction with hydrocarbons
हाइड्रोकार्बन सहित जो ऑक्सीजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करे तो सब कौन है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो मीथेन सहित जब हमें डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा फिर रिएक्ट करले कोन मिलेगा हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जीवो आउ वाटर पाई जीवा हमें जेते हम कोन करिबा गोटे इथेन से रिएक्ट करेगा फिर रिएक्ट करले कोन मिलेगा दुईटा कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर मिल जीवो तो वाटर मिल कोन हियो देखो दुईटा वाटर मॉलिक्यूल 4 भी 6 तो बैलेंस ना दुईटा कार्बन देन 4टा हाइड्रोजन देन 6टा ऑक्सीजन बैलेंस एकला है ना इथाइलिन नवा एसिडिलिन सहित दल के ऑक्सीजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करियो तो कोन मिले हमको दुईटा मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जीवो और इथेन वाटर पाई जीवा तो बैलेंस कर दिबा दुईटा कार्बन अछि एंड ऑक्सीजन 4टा और 5टा अछि तो हाइड्रोजन दुईटा अछि तो 5/2 मल्टीप्लाई होला ये 4 ये 5 हला बैलेंस हे गेला यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन तो डाइऑक्सीजन रो कोड कोड यूज अछि तो यार इंपोर्टेंट यूज पूरा कोन देखिया हमें बहुत बड़े यूज अछि एते द्वारा हम किसी मेन इंपोर्टेंट उडा देखिबा तो मेटलर्जिकल प्रोसेस रे माने मेटल एक्सट्रैक्शन कला बळे इंप्योरिटी को हटाया पई यूज करा जाय मेटल नॉन मेटल रो कोन करा जाय इंप्योरिटी को हटाया पई तो कोन करा जाय ऑक्सीजन को यूज करा जाय आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन माने कोन जे तो आजिकली ए जो श्वास प्रॉब्लम है कोन हबो तो मास्क दिया जाय तो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करा जाय तो सेटा मध्ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हबो आ देखियो डीप सी डाइवर गुडा या समुद्र बुडाली गुडा तो समुद्र भीतर कोन हबो ए जो ऑक्सीजन नवाटा हम प्रॉब्लम हे जिवो काहे ना नाइट्रोजन डिजल हे जिवो ब्लड रे तो ए सब प्रॉब्लम न हो तो कोन करा जाय ए जो कोन करा जाय आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पाई ऑक्सीजन आओ अलगा गैस गुडा मिक्सचर कर निया जाय तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पाई ना हेल्प करू छे रॉकेट फ्यूल रे तो रॉकेट फ्यूल कोन होची लिक्विड ऑक्सीजन यूज करा होची लिक्विड ऑक्सीजन अब मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 HNO3 एंड क्लोरीन क्लोरीन रो तो ए मैन्युफैक्चर बा केमति बाहर हम देखिले तो HCl को ऑक्सीजन रिएक्ट करले वाटर ऑफ क्लोरीन मिलला तो सेमते क्लोरीन रो मैन्युफैक्चर पे मतलब यूज करा जाय oxides may be classified into two groups simple and mixed तो फर्स्ट देखता सिंपल ऑक्साइड वाला किसी टाइप्स अछि तो फर्स्ट टाइप देख दबा बेसिक ऑक्साइड तो बेसिक ऑक्साइड प्राय तो देखियो गले एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर त माने हम बेसिक के आउ एसिडिक केम जानिबा तो वाटर से रिएक्ट करदा सपोज मेटल ऑक्साइड नवा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर से रिएक्ट करदा रिएक्ट कल कोन मिलिबो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलिबो हमको त माने ये बेस कोटे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ यदि कैल्शियम ऑक्साइड यदि हम वाटर से रिएक्ट करे देबा फिर रिएक्ट करे कोन मिले हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जीवो ये रोड बेस हम जानि छु त माने यदि बेसिक ऑक्साइड यदि हम वाटर से रिएक्ट करे देबा बेसिक एसिड हो वाटर से रिएक्ट करे देले यदि से बेस देला त माने बेसिक ऑक्साइड यदि से एसिड से यदि रिएक्ट करे सपोज ऑक्साइड रिएक्ट यदि एसिड देला त माने से एसिडिक ऑक्साइड तो जेतो हम बेसिक ऑक्साइड पढुछे त माने मेटल ऑक्साइड उडा जो वाटर से रिएक्ट करंती तो दियंती कोन बेस दियंती त माने जो ऑक्साइड उडा को वाटर से रिएक्ट करले बेस मिलेबो से उडा हबे बेसिक ऑक्साइड एना होतले बेसिक ऑक्साइड काहे माने वाटर से रिएक्ट करके बेस देले ते उडा कोन एडा सब होची बेस हमरो तो देखिए एसिडिक ऑक्साइड दो ऑक्साइड्स react with the water gives the corresponding acids we are called acidic oxide for example हम नाम सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर इससे कोन होबो H2SO3 H2SO3 कोन हमरो इटा होचे सल्फोनिक एसिड हमरो देन इन कार्बन डाइऑक्साइड सहित हमरो यदि
वाटर रिएक्ट करेगा तो एटा मार्क करथिबा प्राय अधिकांश एटा यूज करा होछि कार्बनिक एसिड H2CO3 सोडा दुकान वाला यूज करा होछि सेना वाटर नियंती ठंडा पानी ने के कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व कर दियंते तो मिल जाउछ कोन कार्बनिक एसिड हम मिल जाउछ तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड गुडाको तो सल्फर नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड गुडाको जेतले कि वाटर सहित रिएक्ट करंती तो कोन दियंती एसिड दियंती तो खाली नॉन मेटालिक ऑक्साइड नै किछि मेटालिक ऑक्साइड गुडा अछंदी से माने कोन कोन से माने एसिड दियंती तो को मेटालिक ऑक्साइड गुडाको जो मानकर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थिवो तो देखिबा एटा गोटे होचे हमरो मेटल ऑक्साइड ता एथिले होची यार +7 हायर ऑक्सीजन स्टेट रो अछि मेटल ऑक्साइड ता बट रिएक्ट कोन होची हमको पेर मैंगनीक एसिड होची तो मेटल ऑक्साइड मध्य कोन करूची एसिड प्रोवाइड करूची जोडा को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रो एम्फोटेरिक ऑक्साइड माने कोन जो माने बोथ एसिड और बेस रिएक्ट करिवे तो सेमान को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहबा तो देखो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ता एसिड रो रिएक्ट करची एटी बेस रिएक्ट करची तो एसिड रो रिएक्ट कर कोन होची हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम आयन और एटी कोन होची सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो एल्युमिनेट 3 दोची तो ये दुटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोची तामाने सेम तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस तो रिएक्ट करके दुटा डिफरेंट कंपाउंड तामाने एमान होते एम्फोटेरिक ऑक्साइड खाली सेति नुहे बेरियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड लेड ऑक्साइड एमान होते एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो एबे किछि न्यूट्रल ऑक्साइड देखबा तो न्यूट्रल ऑक्साइड का करबा जो माने बोथ एसिड बा बेस सहित रिएक्ट करिवे से मान को हमें न्यूट्रल ऑक्साइड कहबा फॉर एग्जांपल हम वाटर ये दुटा ये न्यूट्रल का रिएक्ट करिवो नै N2O कार्बन मोनोऑक्साइड तो एमाने ले सब हमरो न्यूट्रल ऑक्साइड एमाने का है तो रिएक्ट करिवे ना एसिड है ना बेस है तेन करी एमाने न्यूट्रल तो मिक्स्ड ऑक्साइड तो मिक्स्ड ऑक्साइड कोन हम दुटा सिंपल ऑक्साइड गुडा को मिसी के थेबे जो थरे के ऑक्सीडेशन स्टेट गुडा का कोन हम डिफरेंट हो तो देखिबा आयरन ऑक्साइड तो फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड तो फेरस ऑक्साइड रे कोन हम +2 फेरिक ऑक्साइड रे +3 ऑक्सीजन स्टेट एठी भी यार +2 ऑक्सीजन स्टेट +3 ऑक्सीजन स्टेट रे एग्जिस्ट करछि